Hello students, in this video we are going to discuss about derivatives of implicit functions. What is meant by implicit function? If y is equal to f of x is a function in terms of x, means y is purely function in terms of x, so y is called as dependent variable and x is called as independent variable. Here both are variables. Y is equal to f of x means the variable y can be expressed as a function of another variable x. So, f of x is called as explicit function. Sometimes x is equal to g of y means x is purely function in terms of y, then we can say that g of y is explicit function. Okay, means one of the variable is expressed as another variable, then that variable is called as, that function is called as explicit function. For example, y is equal to x square plus 4x minus 9. See here, y is expressed as purely in terms of x means RHS containing x or any real number, means x or x and real number, or purely x or x and real number. Here in this second example, log x plus sin square x means y is expressed as in terms of x, y is purely function in terms of x, so y is called as, or f of x is called as explicit function. Now what it mean by implicit function? Implicit function means here y cannot be expressed in terms of x. Neither x or y can express explicitly as a function of other variable, then such function is called as explicit function. Means neither x or y, means here x we cannot express as in terms of y, or y cannot express in terms of x. Such type of function is called as implicit function. See, for example, here LHS and RHS. Okay, LHS containing x and y, here RHS is also containing x and y, both variables. Okay, LHS containing x and y, and here also both variables RHS, means we cannot express y is equal to f of x form, means we cannot write y in terms of x only or number. Okay, means we cannot express in this way, or y cannot express, or sorry, x cannot express in terms of y. Means here LHS and RHS containing both variables x and y, means we cannot express y is equal to purely in terms of x, then such type of function is called as implicit function. For example, ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. Another example, cos xy is equal to log of x plus y. See, in this case LHS containing xy and RHS also containing xy. See, this one we cannot express y, is cannot write in this way, y is purely function of x, we cannot write in this way. यानी इस टाइप के जो फंक्शन है हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिख नहीं सकते. यानी इम्प्लिसिट फंक्शन में जो भी रहेगा इक्वेशन टाइप ही रहेगा, इज ऑलवेज इन इक्वेशन टाइप, मीन्स इट इज इक्वल टू इज देयर इन ईच एंड एवरी question, equal to is there, equal to sign is there, means either RHS is 0 or RHS is also function of xy. Okay, equation is there. So how to differentiate such type of implicit function? That is the some procedure. In general form of implicit function of two variables x and y is f of xy is equal to 0. Sometime RHS containing xy, suppose we have to transfer that RHS site in LHS, then RHS becomes 0. Okay, means general form is f of xy, here both variable are there, x and y on LHS, sometime on RHS, or sometime in LHS as well as RHS. So f of xy is 0. While taking the derivative of implicit
function, implicit function of y, consider y as a composite function. We consider y as a composite function. For example, what is derivative of sin x? Cos x. But derivative of sin y? See, here we consider y as a composite function, y is a function of x. So, derivative of sin x is cos x. So, therefore, derivative of sin y is cos y, but y is not a single function, it is a composite function. So, you have to multiply with its derivative. So, derivative of sin y is equal to cos y into dy by dx. That's it. यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये पॉइंट याद रखना है. यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई हमें पता है. डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई क्या होता है? साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग आता है. लेकिन यहाँ पर वाई हम कॉम्पोजिट फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं. ओके, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई लिखना है. इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई हियर, राइट? इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई याद रखना है. यानी जो जहाँ पर भी वाई होगा उसका इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई करना है. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग derivative of implicit function? Differentiate both sides of the equation with respect to x, treating y as a differentiable function of x. Then you have to collect the terms containing dy by dx on one side of the equation and solve for dy by dx. यहाँ पर जो है देखो प्रोसीजर क्या बताए. व्हाटएवर में भी द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन रहेगा ओके उसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेके, और वाई को एज्यूम करना है एज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. जो भी इक्वेशन है उसे वाई इज इक्वल टू वापस लिखना नहीं. डोंट राइट वाई इज इक्वल टू गिवन सम. यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे इक्वेशन फॉर्म में रहेंगे. एल एच एस एंड आर एच एस इज देयर. मे बी आर एच एस जीरो हो सकता है या फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है. समटाइम फंक्शन ऑफ एक्स ही हो सकता है. ओके तो उसे कुछ भी करना नहीं, एज इट इज डिफ्रेंशिएट करना है हमें. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस एंड कलेक्ट डीवाई बाई डी एक्स टर्म. डीवाई बाई डी दोनों साइड में डीवाई बाई डी एक्स आ जाएंगे अभी. तो एक साइड में मोस्टली एलएचएस में डीवाई बाई डी एक्स कलेक्ट करेंगे हम एंड सॉल्व फॉर डीवाई बाई डी एक्स. इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर. जो भी इक्वेशन है उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से एंड यू हैव टू कलेक्ट डीवाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड. Now exercise 1.3, find dy by dx. Question number 1, under root x plus under root y is equal to under root a. यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं हमें, आज इट इज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे. टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 चालू हो गया. नाउ सॉल्यूशन, सिंस root x plus root y is equal to root a, it's very simple. U plus v is equal to something function, something constant number. Then differentiating on both sides with respect to x, you will get derivative of root x plus derivative of root y is equal to derivative of root a. What is derivative of root x? 1 upon 2 root x plus derivative of root y भी similar आएगा 1 upon 2 times root y. But y is composite. Y is composite. So you have to write, see, derivative of root x is this one, derivative of root y is this, but y, what is y? Y क्या है? Composite. So you have to multiply with dy by dx. And what is a? A is number, so its derivative is 0. Derivative of a is 0. Okay, तो यहाँ पे हमें दो टर्म मिल गए. तो यहाँ से वन ऑफ द टर्म हम ट्रांसफर करेंगे. दिस टर्म ट्रांसफर ऑन आर एच एस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 1 अपॉन दिस वन कीप एज इट इज 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाते वक्त माइनस हो जाएगा. राइट, देखिए नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 अपॉन 2 वाई 2 इंटू रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वो? माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स. अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में लास्ट स्टेप में देखिए 2 सेम है, 2 same here. Then you have to cancel this 2 here. See, I will show you this 2 to get cancelled. Then what is next step? This root y transfer on RHS side. It become at numerator. Okay. See, therefore dy by dx is equal to minus root y upon root x. Or you can write under root of y upon x. Both are equivalent steps. You can keep this one as it is, minus under root y upon under root x, or you have to simplify that. This is the derivative of dy by dx. Right, now next question, it's a very simple part. See, it is a polynomial form.
differentiate or find dy by dx if x cube plus y cube plus 4x cube y is equal to 0. इसका भी आसान सॉल्यूशन है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे जहाँ पर भी इक्वेशन है. देखो आपको पहले बताया, इफ देयर इज इक्वेशन डोंट सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन, यू हैव टू डिफरेंशिएट एज इट इज, उसे एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे हम. तो सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट x cube plus y cube plus 4x cube y is equal to 0. Now differentiating both sides with respect to x, what is derivative of x cube? 3x square plus derivative of y cube 3y square plus derivative of, see I will show you, see here derivative of x cube by using x raised to n formula 3x square plus derivative of y cube is nothing but 3y square, but y is composite, so multiply with dy by dx plus 4 carry as it is. Now this is nothing but u into v form. Okay, u into v, x cube y. So you have to apply product rule here, right? Product rule, that is first function x cube keep as it is into derivative of y plus y as it is into derivative of x cube, d by dx of x cube means you have to simplify this now. Okay, ये simplify करना है. Derivative of 0 is again 0. Okay, you have to simplify this by एक्स रेस टू एन फॉर्मूला. ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन से सॉल्व करेंगे. अंडरस्टूड? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज नथिंग बट 3x स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, दैट इज नथिंग बट से यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? वो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, दैट इज 4 इंटू, ये आ जाएगा 4x क्यूब, 4 इंटू 3 दैट इज 12 एक्स स्क्वेयर इंटू वाई. जस्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. नाउ यू हैव टू कलेक्ट dy बाई डी एक्स टर्म, यू हैव टू कलेक्ट dy बाई डी एक्स टर्म. सी दिस वन, दिस टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, यानी इसके अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है. यहाँ पर 3x स्क्वेयर क्या है? सिंगल है. तो ये टर्म हम इधर शिफ्ट कर देंगे, वो आ जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट बिकम माइनस, माइनस आ जाएगा वो माइनस 3x स्क्वेयर आ जाएगा वो. करेक्ट. वापस देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स से यहीं पे रखना है, ये भी LHS में रखना है. दिस वन कीप एज इट इज ऑन LHS साइड. नाउ 12x स्क्वेयर विच इज़ फ्री फ्रॉम dy बाई डी एक्स, ये टर्म के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं, तो हम इसे शिफ्ट करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वेयर वाई, माइनस 12x स्क्वेयर वाई, ये भी माइनस हो जाता है. करेक्ट. उसके बाद क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स टर्म जो है ये दोनों टर्म के अंदर सेम दिख रहा है हमें, तो ये कॉमन ले लेंगे. यू हैव टू राइट dy बाई डी एक्स आउटसाइड द ब्रैकेट, मीन्स टेकिंग dy बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स. ये दो टर्म में से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे. ओके. सो द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप विल बी see taking dy by dx common from these two terms and 3x square उधर चला गया, RHS में the transfer that side it become negative and 12 plus 12x square y is also become negative. ओके. तो RHS में जाने के वक्त माइनस हो जाता है वो. राइट. अभी यहाँ पे देखेंगे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते LHS साइड में से, RHS में ले सकते लेकिन कुछ फायदा नहीं. जस्ट यू हैव टू टेक माइनस इन कॉमन हियर. सो dy by dx इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इंटू, यहाँ से देखिए अभी माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं हम, ये माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस यहाँ लिखो या इधर लिख सकते हैं हम. 3x स्क्वेयर प्लस 12x स्क्वेयर वाई अपॉन दिस फैक्टर कीप एज इट इज. सो दिस इज dy बाई डी एक्स. कितना आसान है, खाली आपको जो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आना चाहिए. दैट इज एक्सरसाइज 1.1. वो स्टार्टिंग के जो वीडियोज है उसमें हमने वो पूरा कवर किया है, हाउ टू डिफरेंशिएट कॉम्पोजिट फंक्शन. तो वो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको. तो दिस इज फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट सम इज से क्वेश्चन नंबर 3, x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a. सॉल्यूशन, इट इज given that x root x plus y root y is equal to a root a. Now it's very simple. See here root x and x both are algebraic. So x is nothing but x raised to 1 into x raised to half. Root x means half. That is nothing but x raised to 1 plus half. What is 1 plus half? That is x raised to 3 by 2.
Okay, x raised to 3 by 2. Similarly, y root y is y raised to 3 by 2, and this is also a raised to 3 by 2. But this is constant. You can keep this one as it is, or you have to write a raised to 3 by 2. Right? So first you have to simplify because of both are similar type, algebraic, and this is also number form. So you have to simplify this, then differentiate that. That is x raised to 3 by 2 plus y raised to 3 by 2 is equal to a raised to 3 by 2. It's very simple. U plus v is equal to something, so you have to differentiate directly. Now differentiating both sides with respect to x, the derivative of first term is by using x raised to n formula. That is derivative of 3 x raised to 3 by 2 is 3 by, because of we have the formula derivative of, see, derivative of x raised to n. What is derivative of x raised to n? N into x raised to n minus 1. We have this formula x raised to n minus 1, right? So see here 3 by 2 as multiple, this is multiple into x raised to 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1, it become half. Okay, similarly derivative of this one, but y is composite, so you have to multiply this one, and this is constant number, then its derivative is 0. So it become 3 by 2 into x raised to half means root x, you can write root x also. तो यहाँ पर जो है द फर्स्ट टर्म है ये हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इट बिकम नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. देन यू हैव टू फाइंड आउट एंड सी हियर 3 by 2 सिमिलर टर्म गेट कैंसल आफ्टर ट्रांसफर दैट. ओके, वो ट्रांसफर करने के बाद ही कर सकते हैं हम, अभी कैंसिल करना नहीं आपको, राइट? अभी कैंसिल करना नहीं, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. देयरफॉर see here 3 by 2 into y raised to half into dy by dx is equal to minus 3 by 2 into the x raised to half. That is 3 by 2 get cancelled, that is x raised to half means root x minus root x upon root y. So dy by dx equal to minus under root of x upon y. This is final answer. Okay, इतना आसान है, आप तुरंत इसे सॉल्व कर सकते, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड dy by dx if x plus under root of xy plus y is equal to 1. ओके, यहाँ पर हम y इज इक्वल टू प्योरली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते और करना भी नहीं. अगर इक्वेशन है तो आपको प्रोसीजर क्या बताया, यू हैव टू डिफरेंशिएट एज इट इज. तो हम आसान से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट इज u प्लस v प्लस w फॉर्म है LHS में, उसे डिफरेंशिएट कर देंगे हम. तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट जो भी रहेगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, राइट? अभी यहाँ पर u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. ओके, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट देन मल्टीप्लाई करना है उसे. आई विल शो यू. सी हियर, सी इसका डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/this इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड फंक्शन दैट इज xy. Okay, what is derivative of xy? X keep as it is into derivative of second function y plus y as it is, derivative of x is 1 plus dy by dx, derivative of y is dy by dx, this dy by dx carry as it is, इसे as it is carry करना है. अभी इसके बाद क्या करना है हमें, ये ब्रैकेट ओपन करना है. You have to open this bracket by multiplying 1/this. This 1 keep as it is, plus sign carry as it is, ये plus भी as it is लिखना है. 1/2 root x into root y into x into dy by dx plus 1/2 root under root of xy into y plus dy by dx equal to 0. ओके, इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे, राइट? अभी यहाँ पर देखिए dy by dx टर्म है, वो एक ही साइड में रखना है. dy by dx टर्म, this one keep as it is, this one keep as it is, this is also keep as it is. Now one transfer that side and this see this term keep as it is here and dy by dx term as it is. This one transfer this side and one transfer that side. तो you will get, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस, और you have to simplify first this x is nothing but root x into root x, that is 1 plus 1/2 root x into root y into root x into root x plus 1/2, see I will show you, x is nothing but root x into root x, y is nothing but root y into root y. So here root x get cancel, 1 root y get cancel. Okay, the remaining factor you have to transfer RHS side. यहाँ ये जो 1 है ये RHS में चला जाता है और ये जो फैक्टर बचेगा वो भी RHS में चला जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा
डिवाई बाई डी एक्स कलेक्ट करेंगे हम. डिवाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1. ये 1 यहाँ से आ जाएगा. ओके, देन माइनस रूट, सी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं. दैट इज सी आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये डिवाई बाई डी एक्स और ये डिवाई बाई डी एक्स एज इट इज रखेंगे हम. एंड ये जो टर्म है इसे शिफ्ट करेंगे RHS में. 1 भी उधर शिफ्ट करना है हमें. तो ये डिवाई बाई डी एक्स में से ये जो टर्म दिख रहे सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, यहाँ से हम डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे. टेकिंग डिवाई बाई डी एक्स कॉमन यू विल गेट रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस इसमें से 1 आएगा आउटसाइड. यू हैव टू राइट डिवाई बाई डी एक्स डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन -2 रूट एक्स. एंड ये उधर जाते वक्त माइनस हो जाएगा. करेक्ट. अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई इंटू डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई -2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. सो हियर 2 get cancel, right? Now we want dy by dx. So this term transfer on RHS. तो यहाँ पे रूट वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा. देन dy by dx become, say dy by dx equal to minus into bracket root y into in bracket root y plus 2 root x upon root x into bracket root x plus 2 root y. और you can simplify this. इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम. कैसे सिंप्लीफाई करना है? दैट इज मल्टीप्लाई रूट वाई टू ईच टर्म. सिमिलरली मल्टीप्लाई रूट एक्स टू ईच टर्म एट डिनोमिनेटर. सी यहाँ पे रूट वाई, ये देखिए यहाँ पे रूट वाई इंटू रूट वाई दैट इज बिकम वाई. एंड रूट वाई इंटू रूट एक्स इंटू 2 दैट इज 2 रूट एक्स रूट वाई दैट इज नथिंग बट 2 अंडर रूट एक्स वाई. Similarly root x into root x that become x, and root x into 2 root y or root y into 2 it become 2 into under root xy. Okay, so here both are similar terms, both are equivalent steps. Then you can keep this one as it is or you have to simplify this one. Understood? Now this is final answer. तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा तो भी आप आसान से इसे सॉल्व कर सकते. जस्ट पहले ट्रांसफर कर दो फिर सिंप्लीफाई करो या एज इट इज उसे रख सकते. नाउ x प्लस फाइंड डिवाई बाई डी एक्स इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई. सोल्यूशन x plus y is equal to sin of xy. Now differentiating this with respect to x, you will get derivative of x is 1 plus derivative of y is dy by dx. What is derivative of sin xy? Cos xy into derivative of xy. अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे हम. से हियर derivative of x is 1, derivative of y is dy by dx, derivative of sin of xy is cos of xy, but this angle is not x, it is multiplication form, so into derivative of xy करना है. अभी ये जो फैक्टर्स है इसे एज इट इज कैरी करेंगे हम, एज इट इज लिखना है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यहाँ है. जहाँ पर डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो टर्म सिंप्लीफाई करेंगे. तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म. व्हाट इज दिस? इट इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. जस्ट यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर. फर्स्ट कीप एज इट इज into derivative of y dy by dx plus y as it is into derivative of x is 1. आफ्टर दिस इसके बाद क्या करेंगे हम? ये ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है और ये cos ऑफ एक्स वाई इसे मल्टीप्लाई कर रहा है. तो फर्स्ट LHS you have to write LHS as it is 1 plus dy by dx. First you write LHS is equal to now cos of xy into x into dy by dx is nothing but x into cos of xy into dy by dx plus y into cos of xy. ओके समझ में आया यहाँ पे? अभी यहाँ पे क्या करना है हमें? ये जो टर्म है dy बाई डी एक्स वाला टर्म, ये इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे और 1 यू हैव टू ट्रांसफर ऑन RHS. इट बिकम -1. सो नाउ 1 माइनस कॉस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस ऑफ एक्स वाई -1. तो 1 इधर आते वक्त माइनस हो जाएगा एंड एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स LHS में शिफ्ट होते वक्त माइनस होता है. वो तो बेसिक रूल है, वो आप सबको मालूम है आपको. ना अभी क्या करना है हमें? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए. सो दिस टर्म ट्रांसफर ऑन RHS. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस ऑफ एक्स वाई -1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई.
देन यू विल गेट dy बाई dx। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई इंस्टेड ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स वाई आ गया, ये भी सिंपल है। अब क्या करेंगे इसे, इट इज़ गिवन दैट दिस वन, देन डिफरेंशिएटिंग दिस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin of xy is nothing but cos of xy, but angle is not x, it is sum of two functions, sum of two terms, so into derivative of xy लेना है। यहाँ पर भी देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos is माइनस साइन ऑफ एंगल एज इट इज कैरी करना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल वॉट एवर मे बी द एंगल, राइट। अभी यहाँ पे क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल, बिकॉज ऑफ x इंटू वाई इज हियर। यहाँ पर क्या है, x इंटू वाई है, यहाँ पर क्या है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, हियर एडिशन रूल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, देन ओपन द ब्रैकेट, राइट। एकदम आसान से कर सकते हैं आप। दैट इज नेक्स्ट स्टेप इज माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू ब्रैकेट x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई, वट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज नथिंग बट, now you have to open the bracket, see cos of minus sin of xy into x into dy by dx, it become negative minus x into sin of xy into dy by dx, this is first term, minus sin of xy into plus y, it become minus sin of xy. Again you have to simplify RHS, that is cos of xy into 1, that is cos of xy, plus cos of xy into dy by dx, that is cos of xy into dy by dx. नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, सी आफ्टर डिफरेंशिएट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एक साइड में dy बाई डी एक्स कलेक्ट करेंगे, यू हैव टू कलेक्ट dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड, एक साइड में करेंगे, मोस्टली एलएचएस में करना है। तो ये जो फैक्टर दिख रहा है हमें, ये एज इट इज रखना है, और ये जो है इसे हम शिफ्ट करेंगे एलएचएस में, तो हो जाएगा माइनस, और ये जो है विच इज़ फ्री फ्रॉम dy बाई डी एक्स, ये जो फैक्टर है इसे हम RHS में करेंगे, वो जाते वक्त प्लस हो जाएगा। देखिए RHS देखिए यहाँ पे cos ऑफ एक्स वाई एज इट इज़ है, ये माइनस का इधर जाते वक्त प्लस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू dy बाई डी एक्स, लेकिन हमने एक स्टेप कम कर दिया यहाँ पे, यू कैन स्किप वन स्टेप, तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए दोनों इसमें से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, और एक प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये dy बाई डी एक्स एक साइड में करना है हमें, एंड टेकिंग dy बाई डी एक्स कॉमन, राइट। सो इट बिकम dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स, सी यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा, दैट इज cos of xy plus y into sin of xy अपॉन, और यू हैव टू इंटरचेंज देयर बिकॉज ऑफ एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, y sin of xy ले लेंगे, फिर cos of xy लेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, बिकॉज ऑफ हियर बोथ द टर्म हैविंग नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज x sin of xy plus cos of xy. Don't cancel this cos of xy because of addition sign is there, and don't cancelling this sin of xy also. Right, so this is final answer. Okay, any doubt here? This one is final answer. Now next part is, differentiate or find dy by dx if x square y square is equal to tan inverse of x square plus y square plus cot inverse of x square plus y square. तो स्ट्रक्चर देख के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन होगा वो पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, यू हैव टू ऑब्जर्व द गिवन सम, और सूटेबल मेथड अप्लाई करेंगे। सूटेबल फार्मूला होने दो, मेथड होने दो, जो भी रहेगा। हमने इसे एज इट इज़ अभी स्टार्ट किया है, सिंस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नाउ what is the value of here we have to apply basic rule, what is the value of tan inverse x plus cot inverse x, that is pi by 2, so it become x square plus y square is equal to pi by 2। अभी ये बहुत आसान हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट, सी ये जो आ गया ये ए u इंटू वी फॉर्म है, मल्टीप्लीकेशन इज देयर,
एंड दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू बाय प्रोडक्ट रूल, दैट इज एक्स स्क्वेयर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय टू इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय टू इज जीरो, राइट। सो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वेयर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x। तो यहाँ पर जो है अभी एक दो ही टर्म है, तो एक टर्म यू हैव टू ट्रांसफर ऑन आर एच एस साइड, इट बिकम माइनस। नाउ टू गेट कैंसिल हियर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 हम कैंसिल, यहाँ पे भी कर सकते कैंसिल और यू हैव टू कैंसिल 2 हियर, यहाँ से 1x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, दैट्स इट, माइनस वाई अपॉन एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। एकदम आसान टाइप है, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1। इसका आंसर दिया गया, इसे एज इट इज़ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, ओके। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो जो भी इक्वेशन है यू हैव टू डिफ्रेंशिएट एज इट इज एंड कलेक्ट डी वाई बाई टी एक्स टर्म ऑन वन ऑफ द साइड, स्पेशली एल एच एस में लेना है। देन टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, you will get dy by dx, okay। Then see question number 12, same type, it is a polynomial form। 13 also similar। ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट के सॉल्व प्रॉब्लम है, आप जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, देन यू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।